ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو، سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ شام انگلینڈ میں میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور مجھ پر تیزاب پھینکا۔ شکر ہے میری بیوی اور بچے محفوظ ہیں، تاہم مجھے کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس اور ہنگامی خدمات فوری طور پر میرے گھر پہنچ گئیں۔ شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ شام انگلینڈ میں میرے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور مجھ پر تیزاب پھینکا۔ شکر ہے میری بیوی اور بچے محفوظ ہیں، تاہم مجھے کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ فرید قریشی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ فرید، آگاہ کیجئے گا اس بارے میں۔ بالکل، شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، نامعلوم افراد نے اٹیک کیا اور ان پر تیزاب پھینکا گیا۔ ان کے ہمراہ ان کی فیملی، ان کی وائف اور بچے بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے، تاہم میری حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن بچے اور میری اہلیہ جو ہے وہ محفوظ رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس کو اور ایمرجنسی سروسز کو رپورٹ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری جو تھریٹ تھی، مجھے جو خطرہ تھا، اس سے پولیس پہلے سے آگاہ تھی، اس لیے وہ موقع پر بروقت پہنچ گئے اور میری جان بچا لی گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ وہ ان حملوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں برطانیہ کے اندر، اور مجھے دھمکانے کے لیے یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پولیس بر وقت موقع پر پہنچ گئی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ فرید قریشی، شکریہ۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی دائر اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ دوران سماعت جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، کیا یہ معاملہ نیب کو بھجوایا گیا یا نیب ریفرنس دائر کرنے کی پابند تھی؟ اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید سماعت کے متعلق جانیں گے۔ اظہر، آگاہ کیجیے گا۔ خالد، اس کیس میں جو اہم ترین اپیل ہے اس پر امجد پرویز اس وقت دلائل دے رہے ہیں، اور امجد پرویز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو آرڈر کیا گیا تھا جی آئی ٹی کی تشکیل کا، اس کا ذکر کیا انہوں نے۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا استفسار تھا کہ پاناما جی آئی ٹی میں کتنے لوگ شامل تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس جی آئی ٹی میں 5 لوگ شامل تھے۔ اس موقع پر یہ بھی پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بتا دیں کیو آرز کہاں ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے، اس حوالے سے بتایا گیا کہ جی آئی ٹی نے 10 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی۔ امجد پرویز نے یہ بھی بتایا کہ 10 والیوم پر مشتمل جی آئی ٹی عدالت میں جمع کرائی گئی۔ رپورٹ جمع ہونے کے بعد دلائل مانگے گئے تھے۔ امجد پرویز نے یہ بھی بتایا کہ 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ دیا اور 28 جولائی کو ہی اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ نیب کو بھجوایا گیا تھا یا نیب ریفرنس دائر کرنے کی پابند تھی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عدالت نے فیصلے کے 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امجد پرویز نے یہ بھی بتایا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جمع ہونے کے بعد فریقین کو دلائل کے لیے بلایا گیا۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پاناما کا حتمی حکم نامہ 28 جولائی 2017 کو جاری ہوا۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن نے یہ پوچھا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کیا احکامات جاری کیے تھے اور کیا سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کو کوئی احکامات جاری کیے تھے۔ امجد پرویز نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو مثبت احکام دیے کہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں، جبکہ نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ امجد پرویز نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ فیصلے کی روشنی میں یہ ریفرنس دائر کی گیا اور احتساب عدالت کو 6 ماہ میں ریفرنس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس موقع پر دریافت کیا کہ کیا سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا کہا یا نیب خود اس کا پابند تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے کہا تھا اور نواز شریف کو اس حوالے سے سزا بھی دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تفصیل آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی کے کیس میں احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی مزید ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے رد کیا۔ دوسری جانب سائفر کیس کی سماعت کل جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ لاہور اے ٹی سی نے مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متعلقہ ایس ایچ او کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدم پیشی پر مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ مریم اورنگزیب سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کا مقدمہ درج ہے۔ مقدمے میں جاوید لطیف سمیت دیگر ملزمان بھی نامزد ہیں۔
बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के सिलसिले में सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी है। भारत, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंची है। दुनिया भर से आए सिख यात्री हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर खुश हैं। शेखुपुरा पुलिस ने सिख यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस से तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर यात्रियों का कहना था, पुलिस के वेलकम ने दिल खुश कर दिया, हमें यहाँ आकर अपना ही पंजाब लगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AIG ऑपरेशंस डॉक्टर असद। डॉक्टर असद साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं और आपने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है उन्हें। सिख यात्री बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी, ये हमारे लिए बड़े फखर की बात है कि पंजाब पुलिस ने सिख धर्म के बानी जो हैं बाबा गुरु नानक साहब, उनके 554वें जन्मदिन के हवाले से जो तकरीबात चल रही हैं उसमें हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इस शक्ल में कि पूरी दुनिया से जो डिफरेंट ममालिक से जो लोग सिख यात्री, ना सिर्फ सिख यात्री बल्कि बहुत सारे हिंदू लोग और बाकी मज़ाहब के लोग भी जो है वो इस तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं और पंजाब पुलिस जो है उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी भी बहुत सारे सिख यात्रियों और बाकी लोगों से बात हुई है और उन सब ने पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के खुसूसन इंतजामात को बहुत सराहा है और इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। बिल्कुल। और डॉक्टर असद साहब, जिस तरह से हम एक वीडियो भी देख रहे थे कि एक सिख यात्री थे, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को डबल सैल्यूट किया, दोनों हाथों से सलाम किया, तो जब भी इस किस्म की कोई चीज होती है तो बहुत हौसला अफजा होती होगी और बड़ा इनकरेजिंग होता होगा पुलिस के लिए भी। जी डेफिनेटली, मैं जैसे पहले जिक्र किया कि ये हमें बहुत ज्यादा फख्र भी महसूस होता है। जैसा कि आज देखें ननकाना साहब में जहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान है और जहाँ पे गुरु नानक जी की आज वो सेलिब्रेशन चल रही है, वहाँ पे आज तकरीबन कोई 35,000 के करीब लोगों का बहुत बड़ा जुलूस है जो इस तकरीबात में शरीक है और उन सबको सिक्योरिटी फ्राहम करना, उन सब की उम्मीदों को पूरा करना, उनके म्यार पे पूरा उतरना, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए हैं और उन सबको एक अच्छा इन्वायरमेंट फ्राहम करना, इस सब के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत ज्यादा प्लानिंग की है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगाए हैं और तमाम जवानों को बड़ी अच्छी ब्रीफिंग देने के बाद इस तरह की ड्यूटी पे लगाया गया है ताकि ओवरऑल पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो भी बेहतर हो सके और लोगों तक ये पैगाम जा सके कि पाकिस्तान एक इंतहाई जो है वो पीसफुल और लविंग कंट्री है और यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो अपनी रवायात और अपनी रसूमात को आज़ादाना तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इक़दामात किए, इस पर सभी बहुत खुश हैं और सिख यात्री बहुत खुश हैं। डॉक्टर असद, आपका बहुत शुक्रिया। सिख यात्री इस मौके पर क्या कहते हैं, आपको वो सुनवाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੈਂਡ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है, किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। बहुत बहुत ਸਾਨੂੰ खुशी हुई। अमेरिका में खालिस्तान सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय हुकूमत की नाकाम कोशिश, भारतीय सफीर मुश्किल में फंस गए। न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे के दौरे के मौके पर सिख कम्युनिटी ने भारतीय सफीर को घेर लिया। भारतीय सफीर को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में देखकर सिखों ने खालिस्तान के नारे लगा दिए। भारतीय सफीर से सवालात किए, भारतीय हुकूमत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रही है। सिख कम्युनिटी ने कहा, भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह के बाद गुरपतवंत सिंह पुन्नू को कत्ल करना चाहती है। भारतीय सफीर गुरुद्वारे से भाग निकले, सिख कम्युनिटी ने भारतीय सफीर की गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम लहरा दिए। और खबर देंगे आपको, आर्मी चीफ से सऊदी बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई जिसमें बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद क्या तफसीलात है, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक़, मुलाकात का अहवाल। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल-मतीज ने अपने वक्त के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है, जहां आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शोबों में ताउन समेत इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा गया और खित्ते में अमन कायम करने के लिए दी गई कुर्बानियों को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बिरादराना तल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। ये बताते चलूं कि GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान। IMF के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। FPR हुकाम से टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने पर मुशावरत करेगी। FPR और IMF तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम करेंगे। FPR ज़राए का कहना है टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। IMF वफ्द के साथ मिलकर रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाने से दहंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंच जाएगी। तैयार की जाने वाली टैक्स तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 746 पॉइंट से इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 59,833 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है मईशत की मुस्बत खबरों की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। IMF के मुआहदा और शरह सूद में कमी के इम्कान से सरमायाकारों में एतमाद पैदा हुआ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब की जाए, खानदान में मुशावरत शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय साधवानी। संजय, फिर क्या तय हुआ? देखिए, दुबई में जो भुट्टो और जरदारी खानदान के फैमिली मीटअप हुआ था, इस मीटअप में बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी के हवाले से गुफ्तगू की गई है। दोनों खानदानों में ये बातचीत की गई है कि बिलावल की शादी कब की जाए। मुशावरत हो रही है। खाला और फूफू यानी फरियाल तालपुर और सनम भुट्टो की जानिब से बिलावल की शादी के लिए मुख्तलिफ फैमिलीज के प्रपोजल सामने रखे हैं। कुछ फैमिलीज ने फरियाल तालपुर को अप्रोच किया है, जबकि कुछ फैमिलीज को भुट्टो खानदान की जानिब से भी देखा गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जिस पर राजी होंगे उसके ऊपर जो पाक भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान के फैमिली मेंबरान है वो फैमिली से बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द से जल्द शादी करें। बिलावल की शादी के हवाले से दोनों बहनें यानी बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो जरदारी का अहम किरदार होगा। और अब ये बताया जा रहा है कि जल्द इस हवाले से बिलावल के जो खानदान वाले हैं वो फैसला करने वाले जल्द इस हवाले से फैसला किया जाएगा। संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा ने कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इक्तदार की लालच में 18वीं तरमीम पर समझौता हुआ तो मुल्क की मज़ामती तहरीक जन्म लेगी। पाकिस्तान का सियासी और मौशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जावेद लतीफ कहते हैं जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा उतनी ही जल्दी इस्तेहकाम आएगा। आम इंतखाबात में 1 घंटे की ताखीर के भी हामी नहीं। 90 मिलियन पाउंड कोई खा जाए तो पूछा ना जाए, वो लाडला जो है उस पर कोई उंगली ना उठा सके। इंसाफ के तकाजे क्या इस तरह पूरे होंगे या इंसाफ चेहरे देखकर मिला करेगा? सहाफी, कुछ एंकर हजरात और कुछ सियासतदान ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कुछ अरसा डिले हो सकते हैं या डिले किए जाएं। 1 दिन की जो डिले है इंतखाबात में वो रियासत को नुकसान पहुंचाएगी। जितनी जल्द इंसाफ मिलेगा उतना ही सियासी और माशी इस्तेहकाम जल्द आएगा। बेगुनाह जो है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो गुनाहगार है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तसव्वुर न करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जिसके लिए वो इस हाल को पहुंचे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाए? PTI की आम इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी कराने के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस वक्कार अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील मुअज्जम भट्ट एडवोकेट का कहना था आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इंतखाबात कराना लाजमी है। गवर्नर और निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़ हो चुके हैं, जबकि PTI को इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं। मरकजी, सूबाई और निचली सतह की क़यादत गिरफ्तार और मुकदमात का सामना कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा जवाब तलब करके समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी सबसे अहम है। निगरां हुकूमतों से पार्टी कायद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। कहा, लाखों कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए अदालत जाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुदाखलत और तशद्दुद के बावजूद लोग बहादुरी से बाहर निकले। लाकानूनियत की राह पर चलने वाले इंतशार की आड़ में इंतखाबात से फरार की ताक में हैं। किसी को इंतखाबात से भागने का जवाज फराहम नहीं करेंगे। जुल्म पर इंसाफ गालिब आएगा और कौम जल्द अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करेगी। अलकादिर का केस अब खत्म हो गया। पीटीआई वकील लतीफ खोसा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट में एक धेला नहीं आया। ये फसाद इसलिए है कि इलेक्शन मौखिर कराया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। अलकादिर वाला केस खत्म हो गया। फसाद को के जरिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को मौखिर कराया जाए, तो पीटीआई नहीं होने देगी। खान साहब ने कहा है, हम हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या हम बेल आफ्टर रेस्ट की मूव कर दें। वो खान कहता है 4-5-10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे। सारा 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे। ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात थी। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदिम कर देंगे, -1 का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क एक कदम आगे जाता है, 10 कदम पीछे जाता है। तो कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। टेक्निकल कमेटी प्लाजा में आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख की सरबराही में बनाई गई है। कमेटी आतिशज़दगी की वजूहात, अवामिल और रेस्क्यू महकमों से जवाबी वक्त की जांच करेगी। कमेटी गफलत बरतने वाले अफसरान, महकमा बशमूल प्राइवेट अफराद पर जिम्मेदारी का तयन भी करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में वाक़यात को रोकने के इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। माल में आतिशज़दगी के वाक़े में 11 कीमती जानें ज़ाया हुई, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद के जाँ बहक होने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़िम अफनान के वालिद शफकत की अपूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़िम अफनान के वालिद शफकत का कहना था कि 6 लोगों की मौत एक हादसा थी। मुतासर खानदान को धमकी दी, ना ही कोई पेशकश की। इंशाअल्लाह हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। हमारा फैसला कानून इंसाफ के तहत हो। हमने किसी को थ्रेट किया है या हमने किसी को ऑफर किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत बातें हैं। 302 में कन्वर्ट हो गया। अब 302 में मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ, मुझे बताएं। हम पे दहशत गर्दी लगा दी गई। मेरी वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस पंजाब के शहरी हैं। सो आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने, इन्वेस्टिगेट होने दें। कोई भी वालिद या वालदा अपने बच्चों को इस तरह खुला नहीं छोड़ते। बच्चे निकलते हैं, बच्चे वालिदैन का कहना नहीं मानते, तो निकला है उसकी गलती है। सिटी कोर्ट कराची में पेशी के दौरान हसन न्याजी को फरार कराने के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने अली जैदी के खाके आवेजा करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से मुल्जिम की मनकूला गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल अदालत में पेश हुए। अदालत ने हलीम आदिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। कराची लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो वोटर हो जाते हैं और वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लें, पाकिस्तान की सियासत को समझने में किरदार अदा करें, अपना ये जो फर्ज है, जो हक है वोट देने का, उसको बेहतर इस्तेमाल करें। हमारे पास सारी सियासी पार्टियां अपने तौर पर काम करने की कोशिश कर रही हैं। जल्द से कन्वेंशंस हो रहे हैं और गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इसमें बहुत से लोग पार्टियों में शामिल होते हैं। वो भी अपना अपना प्रोसेस है जो हर साल होता है, हर दफा होता है जब भी इलेक्शन हुआ चाहती है। हमें अच्छा लगता कि सियासी पार्टियां अपने अपने मंशूर पे काम तो करती हैं, उनका भी इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को 2 चीजें
थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किसी जमाने में पास हुआ था, 2 पार्टियां थीं, इसके मुहर्रिक एक पीपल्स पार्टी, दूसरा PMLN। फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों ने बहुत सारे एतराजात किए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हमारा यही था कि सियासत के खिलाफ साजिश न की जाए। जो इस वक्त तक कमजोर रही है पाकिस्तान की जमहूरी सियासत, उसको धचके न दिलाए जाएं, और उस धचकों से पाकिस्तान और कमजोर होगा और अवाम और कमजोर होंगे। दूसरा इशू भी बहुत दिनों से बात की जाती रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि वही कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनाओ जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां उसको अपना समझकर उसको कंटिन्यू करें। उस पॉलिसीज को कंटिन्यू न करने से या कोई डिफरेंट अप्रोचेस देने से माहौल सारा तितर बितर हो जाता है। भी हमने यही बात की थी कि अगर एक हुकूमत कोई स्कीम शुरू करती है तो कोई दूसरी हुकूमत आके उस स्कीम को खत्म न कर दे, और उस पर जितना बहुत काम हुआ है सो अपनी जगह पे, लेकिन उसको जरा और ज्यादा करेंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पार्टियों का अपना अपना काम होता है, वो किसी से इत्तेहाद करें या न करें, वोट तो लोगों ने देना होता है। कोई किस जमात से ताल्लुक रखता है, कोई किस जमात से ताल्लुक रखता है, लेकिन हर कैंडिडेट मुखालिफ दोस्त के साथ भी अप्रोच करता है कि जी हमारी बात सुनो। ये करते रहेंगे, इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, और सियासत इसी का नाम है। यहां सुना है 170 पॉलिटिकल पार्टीज में से चंद ही पार्टीज हैं जो पार्लिमानी कुव्वत लेकर असेंबलियों में पहुंचती हैं। हमारी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि इन असेंबलियों की भी इज्जत करो, और जो लोग अपना इजहार ख्याल और इजहार आज़ादी के साथ करते हैं उसमें फिर से मैं बावर करा रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं कि हमारे इस मसले को परमानेंटली हल करो, हम भी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल बने। हमारे हमसाए मुल्क में 3 महीने तक इलेक्शन चलते हैं, उसके बाद जाके रिजल्ट अनाउंस होते हैं, और वहां से रिजेक्शन का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। हमारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होते हैं, मरकजी और सूबाई, एक ही दिन इलेक्शन होते हैं, एक ही दिन में उनसे तकाजा है, उनसे डिमांड है कि वो उसी टाइम के अंदर हर एक को उसका रिजल्ट पता चले। अपनी पोलिंग स्टेशन को मजबूत करें। उस पोलिंग स्टेशन में जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे अफसरान होते हैं उन पर वॉच रखी जाए। जो पोलिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, वो बेसिकली एक उम्मीदवार की हैसियत से पोलिंग स्टेशन में आके बैठते हैं, पोलिंग एजेंट किराए के नहीं होते। उनको मजबूत किया जाए। अगर उनको मोबाइल फोन अंदर ले जाना पड़े तो ले जाएं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर हरकत क्या होती हैं। वोट के ऊपर किसी को खड़ा होने का हक नहीं है, उधर सिर्फ वोटर ही जाए। वोट देने वक्त सिर्फ वोटर ही जाए, न उसके ऊपर कोई ऑफिसर खड़ा हो, न कोई पोलिंग एजेंट खड़ा हो। ये आराम से अगर करेंगे, उन सबको साथ बिठा के वोटों की गिनती की जाएगी। उनको उसी वक्त अगर सर्टिफिकेट दिया जाए और उसी सर्टिफिकेट की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाए, इसमें तफरका न हो, इसमें कंट्राडिक्शन न हो, किसी को पेटी उठाने की इजाजत न हो,
یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو پولنگ اسٹیشن مضبوط ہوں گے اور اسی پولنگ اسٹیشن سے ہی نتائج نکلتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ گنتی کے وقت میں جیسے 2018 میں ہمیں دکھائی دیا پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ پولنگ ایجنٹ دیوار میں ایک چارپائی کھڑی ہے، اس دیوار کی چارپائی کے پیچھے پولنگ ایجنٹ کو بٹھا دیا گیا کہ تم دور ہو کے بیٹھو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس طرح کی صورتحال جب پولنگ اسٹیشن میں آئے گی